بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله وسلم. علم سکون میں خوش آمدید. اگر اس رمضان میں اللہ آپ کو اپنا خاص بندہ بنا لے تو آپ کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے؟ کیا ہوگا اگر آپ کی دعا رد نہ ہو، اگر آپ کا نام آسمانوں میں محبت سے لیا جائے، اگر اللہ خود آپ سے راضی ہو جائے؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر روزہ رکھنے والا اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی خاص راز ہے، کوئی ایسا راستہ جو عام انسان کو اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل کر دے؟ آج ہم اس رمضان ایک ایسے عظیم راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کو کیسے بدلا جائے، نیت کو کیسے پاک کیا جائے، اور زندگی کو کیسے اللہ کے لیے وقف کیا جائے۔ یہ راز ہمیں ملتا ہے ایک عظیم دانا کی حکمت سے، جن کا ذکر خود قرآن میں آیا، حکیم لقمان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا سب سے طاقتور رمضان بن جائے تو یہ پیغام آخر تک ضرور سنیے گا۔ رمضان اور اللہ کی دوستی کا اصل مفہوم، حکیم لقمان کی پہلی نصیحت۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کے قریب آنے، خود کو بدلنے اور اپنے رب سے سچی دوستی قائم کرنے کا سنہری موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین پر چلنے والے بندوں کو آسمان والا رب خود اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل پہچان ہمارے کپڑوں، دولت یا عہدے سے نہیں، بلکہ ہمارے دل کی حالت سے ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی دل کی صفائی میں ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو انسان کے اعمال خود بخود سنورنے لگتے ہیں، اور رمضان اسی دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ حکیم لقمان کی پہلی نصیحت ہمیں اسی بنیاد کی طرف لے جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سب سے پہلے اپنے دل کو شرک سے پاک کرو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دل میں شریک نہ کرو، نہ خوف میں، نہ امید میں، نہ محبت میں۔ جب دل مکمل طور پر اللہ کے لیے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اسی دل میں اللہ کی خاص محبت اترتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سوچئے کیسا عظیم مقام ہے یہ، نہ خوف، نہ غم، نہ بے چینی۔ یہ مقام صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو دل سے اللہ کے ہو جاتے ہیں، اور رمضان ہمیں اسی راستے پر ڈالنے آتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر رمضان کو صرف رسم بنا لیتے ہیں۔ دن بھر بھوکے رہتے ہیں مگر دل گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ زبان روزے میں ہوتی ہے مگر آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، کان غیبت سنتے ہیں اور دل کینہ، حسد اور غرور سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسے روزے سے اللہ کی دوستی نہیں ملتی، بلکہ ہمیں صرف تھکن ملتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں ہمارا روزہ بھی ایسا تو نہیں، کہیں ہم بھی انہی لوگوں میں تو شامل نہیں جنہیں روزے کا اصل مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا۔ حکیم لقمان کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی دوستی کا پہلا قدم دل کی اصلاح ہے۔ اپنے اندر جھانکنا، اپنی نیت کو ٹٹولنا، اپنے گناہوں کو پہچاننا اور پھر سچے دل سے توبہ کرنا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت نفس کو روکنے میں ہے۔ جب بھوک لگے اور آپ صبر کریں، جب غصہ آئے اور آپ خاموش رہیں، جب گناہ کا موقع ملے اور آپ رک جائیں، تو یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس رمضان یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں صرف بھوکا نہیں رہنا، بلکہ اپنے دل کو بدلنا ہے، اپنی نیت کو سنوارنا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، تو یقین مانیں یہی رمضان ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے، اللہ کی دوستی کے سفر کا پہلا دروازہ۔ دل کی صفائی، نیت کی سچائی اور رب کی طرف سچی واپسی۔ دل کی صفائی اور اخلاص اللہ کے خاص بندوں کی پہلی پہچان۔ رمضان ہمیں صرف ظاہری عبادت نہیں سکھاتا، بلکہ یہ ہمیں اندر سے بدلنے آتا ہے۔
ये महीना हमें ये एहसास दिलाता है कि असल कामयाबी चेहरे की मासूमियत में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी में है, क्योंकि अल्लाह हमारी सूरत नहीं देखता, वो हमारे दिलों को देखता है, हमारी नीयत को देखता है, हमारे अंदर के हाल को देखता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिस दिन न माल फायदा देगा और न औलाद, मगर वो शख्स कामयाब होगा जो अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आएगा। ये आयत हमें बताती है कि क़यामत के दिन सब कुछ बेफायदा हो जाएगा सिवाय एक चीज के, और वो है पाक दिल। अगर दिल पाक हो गया तो सब संवर गया, और अगर दिल खराब हो गया तो सारी इबादतें भी बोझ बन जाती हैं। दिल की सफाई का पहला दर्जा इखलास है, यानी हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए हो, लोगों को दिखाने के लिए ना हो, तारीफ समेटने के लिए ना हो और शोहरत हासिल करने के लिए ना हो, क्योंकि वो इबादत जो लोगों के लिए हो अल्लाह के यहां वजन नहीं रखती। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्हें हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की इबादत करें, इसके लिए दीन को खालिस करते हुए। इखलास का मतलब यह है कि जब आप नमाज पढ़ें तो दिल में यह हो कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं, जब दुआ मांगे तो यकीन हो कि वो सुन रहा है, जब सदका दें तो ये ख्याल ना आए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये हो कि मेरा रब खुश हो जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। ये हदीस हमें बताती है कि दिल की हालत सबसे अहम है। अगर दिल साफ हो तो थोड़ा सा अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है, और अगर दिल मीला हो तो बड़े से बड़ा अमल भी बेवजन हो जाता है। रमजान हमें ये मौका देता है कि हम अपने दिल का जायजा लें। क्या हमारे दिल में हसद है? क्या किसी के लिए कीना है? क्या दिल में तकब्बुर है? क्या हम दूसरों को कमतर समझते हैं? अगर हां तो समझ लीजिए कि ये सब चीजें अल्लाह की दोस्ती के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। दिल की सफाई का एक बड़ा जरिया तौबा है, सच्ची तौबा। वो तौबा जिसमें आंख नम हो जाए, दिल पिघल जाए और इंसान अपने रब के सामने टूट जाए, क्योंकि टूटा हुआ दिल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। रमजान की सहर हो, इफ्तार से पहले के लम्हे हो या रात की तन्हाई, ये सब वक्त दिल को धोने के सुनहरी मौके हैं। अगर इन लम्हात में बंदा सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मेरा दिल साफ कर दे, मेरी नीयत दुरुस्त कर दे, मुझे अपना बना ले, तो यकीन रखें यही वो लम्हा होता है जहां से बंदा अल्लाह के खास बंदों की फहरिस्त में शामिल होने लगता है। यही है दिल की सफाई का राज, यही है इखलास की ताकत, और यही है अल्लाह की दोस्ती का असल दरवाजा। इबादत से आगे का सफर, किरदार, अखलाक और खिदमत खल्क। रमजान हमें सिर्फ इबादत गुजार नहीं बनाता, बल्कि ये हमें बाकिरदार इंसान बनाने आता है। ये महीना हमें सिखाता है कि अल्लाह का खास बंदा बनने के लिए सिर्फ नमाज, रोजा और तिलावत काफी नहीं, बल्कि असल कमाल ये है कि हमारा अखलाक, हमारा रवैया और हमारा बर्ताव भी इबादत बन जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह के नजदीक इज्जत का मेयान न दौलत है, न हस्बे नसब, न इल्म, बल्कि तकवा और अच्छा किरदार है। और तकवा का सबसे खूबसूरत इजहार इंसान के अखलाक में नजर आता है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की वो सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं थी, उन्होंने किरदार की इस्लाह पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ नरमी इख्तियार करो, जमीन पर अकड़ कर ना चलो, आवाज धीमी रखो और दिल में आजिज़ी पैदा करो, क्योंकि तकब्बुर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है और आजिज़ी अल्लाह के करीब कर देती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। ये आयत हमें झुंझोड़ देती है। सोचिए, अगर हमारे दिल में जरा सा भी गुरूर आ जाए, अपनी इबादत पर फख्र आ जाए, अपने इल्म पर तकब्बुर आ जाए, तो हम अल्लाह की नाराजगी मोल ले लेते हैं। इसलिए रमजान हमें तोड़ने आता है, झुकाने आता है, ताकि हम आजिज बन सकें, नर्म बन सकें और अल्लाह के महबूब बन सकें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो। ये हदीस हमें बताती है कि बेहतरीन इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा नफिल पढ़े, बल्कि वो है में जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, जो लोगों को तकलीफ ना दे, जो मुआफ करे, जो आसानी बांटे, जो दिल जोड़े
ना कि तोड़े। रमजान हमें खिदमत खल्क का सबक देता है। जब हम खुद भूखे रहते हैं तो हमें भूखे का दर्द समझ आता है। जब हमें प्यास लगती है तो हमें मजबूर इंसान की बेबसी का एहसास होता है। यही एहसास हमें दूसरों के करीब ले जाता है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी गमजदा के आंसू पोंछ दें, किसी मजबूर की मदद कर दें, तो ये सब अल्लाह का नजदीक बहुत बड़ा अमल बन जाता है। याद रखिए, अल्लाह का खास बंदा वो नहीं जो सिर्फ मस्जिद में रोए, बल्कि वो है जो लोगों के दुख में भी रोए, जो मखलूक के लिए रहमत बन जाए। रमजान हमें यह सिखाता है कि हमारा किरदार हमारी इबादत की गवाही दे। अगर हम नमाज पढ़ें और फिर झूठ बोलें, रोजा रखें और फिर किसी का दिल दिखाएं, तो हमारी इबादत अधूरी रह जाती है। अल्लाह का खास बंदा वो है जो अपने अखलाक से दीन की दावत बन जाए, जिसकी खामोशी भी नसीहत हो, जिसका रवैया भी इबादत हो और जिसकी मौजूदगी भी सुकून बन जाए। यही है इबादत से आगे का सफर, किरदार, अखलाक और खिदमत खल्क का रास्ता। आजमाइश, सब्र और इस्तिकामत, अल्लाह की दोस्ती का कड़ा इम्तिहान। अल्लाह की दोस्ती का रास्ता आसान नहीं होता। ये रास्ता आजमाइशों, सब्र और साबित कदमी से होकर गुजरता है, क्योंकि अल्लाह अपने खास बंदों को सिर्फ नेमतों से नहीं बल्कि आजमाइशों से भी पहचानता है। जब इंसान मुसीबत में भी अल्लाह को ना छोड़े, तब वो वाकई अल्लाह का अपना बन जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो सिर्फ ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? ये आयत हमें बताती है कि ईमान का दावा इम्तिहान मांगता है। आजमाइशें आती हैं ताकि सच्चे और झूठे में फर्क हो जाए, साबिर और नाशुक्रे की पहचान हो जाए और अल्लाह के खास बंदे नुमायां हो जाएं। रमजान हमें सब्र सिखाता है, भूख पर सब्र, प्यास पर सब्र, ख्वाहिशात पर सब्र और गुस्से पर सब्र। ये सब हमें मजबूत बनाते हैं। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देता है तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जिसके साथ खुद अल्लाह हो, उसे फिर किसी सहारे की क्या जरूरत। जो शख्स सब्र सीख लेता है वो अंदर से ताकतवर हो जाता है। वो टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बल्कि हर आजमाइश के बाद और मजबूत हो जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला कितना हैरत अंगेज है। उसके हर हाल में भलाई है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, ये उसके लिए भलाई है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए भलाई है। ये हदीस हमें जिंदगी गुजारने का मुकम्मल उसूल सिखा देती है। खुशी में शुक्र और गम में सब्र, यही अल्लाह के खास बंदों की पहचान है। लेकिन याद रखिए, सब्र का मतलब खामोशी नहीं, बेबसी नहीं और जुल्म बर्दाश्त करते रहना नहीं। सब्र का मतलब है दिल को अल्लाह के हवाले कर देना, शिकायत के बजाय दुआ को चुन लेना, मायूसी के बजाय उम्मीद को थाम लेना। जब कोई इंसान मुश्किल में ये कहता है कि या अल्लाह, मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, तो यही वो लम्हा होता है जब आसमानों में उसका नाम लिया जाता है। अल्लाह की दोस्ती का एक और अहम सुतून इस्तिकामत है, यानी एक दिन नेकी करके छोड़ देना नहीं, बल्कि हर दिन खुद को संभाल कर रखना। रमजान में हम सब इबादत करते हैं, मगर असल कमाल ये है कि रमजान के बाद भी वही नमाज, वही कुरान, वही अखलाक, वही तकवा बाकी रहे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये मकाम बहुत बुलंद है। इस्तिकामत इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां अल्लाह खुद बंदे की हिफाजत का वादा कर लेता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें अपना खास बंदा बनाए, तो हमें आजमाइश में सब्र और इबादत में इस्तिकामत सीखनी होगी, क्योंकि अल्लाह की दोस्ती वक्ती जज्बा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सफर है। यही आजमाइश का राज है, यही सब्र की ताकत है और यही इस्तिकामत की पहचान है। रमजान के बाद की जिंदगी, मुस्तकिल तब्दीली और अल्लाह से सच्ची वाबस्तगी। रमजान हमें बदलने आता है, मगर असल सवाल यह है कि क्या यह तब्दीली रमजान के बाद भी जिंदा रहेगी? क्योंकि अल्लाह का खास बंदा बनना एक महीने का जज्बा नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का अहद है। अगर रमजान गुजरने के बाद हम फिर वही गफलत, वही सुस्ती, वही गुनाह और वही लापरवाही इख्तियार कर ले, तो हमें खुद से यह सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या हमने वाकई रमजान पाया था?
अल्लाह कुरान में फरमाता है, और अपने रब की इबादत करते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। ये आयत हमें याद दिलाती है कि इबादत, तकवा और अल्लाह की इताअत किसी एक महीने तक महदूद नहीं, बल्कि ये जिंदगी के आखिरी लम्हे तक का सफर है। अल्लाह का खास बंदा वो है जो रमजान के बाद भी अपने रब से जुड़ा रहे, जिसकी नमाज भी बाकी रहे, जिसका कुरान से ताल्लुक भी कायम रहे और जिसका दिल भी जिंदा रहे। रमजान हमें तरबियत देता है, मगर असल इम्तिहान ईद के बाद शुरू होता है। क्या हम फजर की नमाज वैसे ही पढ़ेंगे जैसे रमजान में पढ़ते थे? क्या हम कुरान को वैसे ही थामे रखेंगे जैसे रमजान में थामते थे? क्या हम गुनाह से वैसे ही बचेंगे जैसे रमजान में बचते थे? यही वो लम्हा है जहां अल्लाह के खास बंदे आम लोगों से अलग हो जाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम जरूर उन्हें अपने रास्ते दिखा देते हैं। ये वादा है अल्लाह का, जो बंदा कोशिश करता है, जो खुद को संभालने की जद्दोजहद करता है, जो बार बार गिरकर भी उठता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को नूर से भर देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो पाबंदी से किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। ये हदीस हमें जिंदगी का सबसे आसान मगर ताकतवर उसूल दे देती है, थोड़ा मगर मुस्तकिल। रोज थोड़ा कुरान, रोज थोड़ी दुआ, रोज थोड़ा जिक्र, रोज थोड़ी इस्लाह। यही छोटे छोटे अमल मिलकर इंसान को अल्लाह का खास बंदा बना देते हैं। अल्लाह की दोस्ती कुर्बानी मांगती है। किसी गलत आदत को छोड़ना पड़ता है, किसी हराम रास्ते से मुंह मोड़ना पड़ता है, किसी पुराने गुनाह को हमेशा के लिए दफन करना पड़ता है। जब बंदा यह कुर्बानी दे देता है तो अल्लाह उसके बदले उसे ऐसा सुकून अता करता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। याद रखिए, अल्लाह का खास बंदा वो नहीं जो कभी गुनाह न करे, बल्कि वो है जो गुनाह के बाद पलट आए, टूट जाए, रो पड़े और फिर अपने रब से जुड़ जाए। यही लौटना, यही नदामत, यही आजिज़ी बंदे को अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। अगर इस रमजान हम ये पुख्ता इरादा कर लें कि हमने इस महीने को अपनी जिंदगी का मोड़ बनाना है, तो यकीन जानिए यही फैसला हमारी दुनिया भी बदल देगा और आखिरत भी। यही है मुस्तकिल तब्दीली का राज, यही है अल्लाह की दोस्ती का आखिरी दरवाजा और यही है असल कामयाबी। आज अगर हमने इस पैगाम को दिल से सुन लिया, अगर हमने वाकई ये फैसला कर लिया कि इस रमजान हमें सिर्फ रोजादार नहीं बल्कि अल्लाह का खास बंदा बनना है, तो यकीन माने हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अल्लाह की दोस्ती कोई ख्वाब नहीं, कोई नामुमकिन मकाम नहीं। ये एक रास्ता है जो दिल की सफाई से शुरू होता है, इखलास से गुजरता है, किरदार की खूबसूरती से निखरता है, सब्र और इस्तिकामत से मजबूत होता है और फिर अल्लाह की खास कुर्बत तक पहुंच जाता है। ये रमजान हमसे एक सवाल कर रहा है, क्या हम आम बनकर रहना चाहते हैं या अल्लाह के खास बंदे बनना चाहते हैं? अगर खास बनना चाहते हैं तो आज ही नियत बदल लो, आज ही दिल साफ कर लो, आज ही सच्ची तौबा कर लो और अपने रब से कह दो, या अल्लाह मैं तेरा हूं, मुझे अपना बना ले। याद रखो, जिस दिन अल्लाह बंदे को अपना कह दे, उस दिन दुनिया की हर महरूमी खत्म हो जाती है और दिल को वो सुकून मिल जाता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ऐ अल्लाह, हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, हमारी छुपी हुई खताओं को माफ फरमा दे और हमें इस रमजान के बाद भी अपना कुर्ब नसीब फरमा दे।